Good morning. In the last video of class 12th accountancy, we discussed a new chapter number 5th, retirement or death of a partner. You know very well this chapter divided into two parts. The first part relate to the retirement of a partner and the second part is related to the death of a partner. You know very well a partner has the right to retire from the firm after giving due notice in advance. Old partnerships comes to an end after the retirement of a partner, but the firm continues and a new partnership comes into existence between the remaining partner. In the last video we also discussed a retiring partner is entitled to get the following: his share of capital, his share in goodwill, his share in reserve, his share in revaluation of assets and liability. You know very well, on the retirement of a partner, the following accounting problem arise on this situation. The first one is calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio. The second, treatment of goodwill. Number third, accounting treatment for revaluation of assets and liability. Number 4, accounting treatment of reserve accumulated profit and losses. Number 5, payment to retiring partner. Number 6, adjustment of capital in proportion to profit sharing ratio. In the last video we discussed the accounting problem related to the calculation of new profit sharing ratio, how we will calculate the new profit sharing ratio when any partner retires from the firm, and how we will calculate the gaining ratio of the remaining partner or continuing partner on the retirement of a partner. Today we will move to the next topic of this chapter. The first one is distinction between sacrificing ratio and gaining ratio. You know very well, sacrificing ratio and its gaining ratio is a very important part. When a new partner admitted in a firm, then old partner sacrifices share of profit, whereas when any partner retired from the firm or died, so the continuing partner gain. So sacrificing ratio is the ratio of decrease in the old partner's share of profit at the time of admission of a new partner, whereas the gaining ratio is the ratio of gain in the remaining partner of share profit at the time of retirement or the death of a partner. यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जो ओल्ड पार्टनर्स के शेयर ऑफ प्रॉफिट में डिक्लाइन लेकर आता है जब कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है। वहीं गेनिंग रेशियो एक ऐसा रेशियो होता है जो इस बात को डिनोट करता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो उससे जो रिमेनिंग पार्टनर या कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उसके शेयर में जो भी इंक्रीमेंट आता है उसे हम लोग गेनिंग रेशियो कहते हैं। बट देयर आर फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑन द डिफरेंट बेसिस. The first difference on the basis of meaning, sacrificing ratio is the ratio in which the old partner surrender a part of their share in favor of a new partner. यानी sacrificing ratio वो रेशियो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर को सरेंडर करते हैं न्यू पार्टनर को. वहीं गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर आउटगोइंग पार्टनर शेयर. और गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिसे रिमेनिंग पार्टनर पाते हैं किसी भी पार्टनर के जाने से, चाहे वो रिटायर्ड से होकर जाए, रिटायरमेंट लेकर जाए या फिर डेथ के केस में. व्हेन कैलकुलेटेड, sacrificing ratio is calculated at the time of admission of a new partner, whereas the gaining ratio is calculated at the time of retirement or death of a partner. Formula for calculation. The formula for calculating sacrificing ratio is old ratio minus new ratio, whereas formula for calculating gaining ratio, new ratio minus old ratio. The purpose of calculation, you know very well, जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उसके कारण पुराने पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस करते हैं. सो यू नो वेरी वेल कि अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है तो उसे गेनिंग पार्टनर की तरफ से कंपनसेशन प्रोवाइड किया था इन द फॉर्म ऑफ गुडविल.
So sacrificing ratio is calculated when a new partner admitted in a firm and he brings his share of goodwill which divided between the old partner and their sacrificing ratio. Whereas gaining ratio क्यों प्रोवाइड होता है? जब कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो वो उसके जाने से जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं उनको प्रॉफिट होता है, उनको गेन होता है. सो जो पार्टनर जा रहा है वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, जो पार्टनर रह रहे हैं वो गेन कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो पार्टनर कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर हैं वो जाने वाले पार्टनर को यानी रिटायरिंग पार्टनर्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. सो गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड व्हेन गुडविल पेड टू रिटायरिंग पार्टनर बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो. ये बेसिकली फंडा है. ये डिफरेंसेस समझना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वी विल मूव टू द सेकेंड adjustment of this chapter, that is accounting treatment of goodwill. The retiring or deceased partner is entitled to his share of goodwill at the time of retirement or death because the goodwill earned by the firm is the result of the efforts of all the existing partners in the past. Since a part of the future profit will be accruing because of the present goodwill and retiring or deceased partner will not sharing future profit, it will be fair to compensate the retiring or deceased partner for the same. At the time of retirement of a partner, the goodwill is evaluated on the basis of agreement among the partner. As discussed in chapter 2, there are basically various kind of method of goodwill: average profit method, super profit method and capitalization method, which are given in the question. So ये पूरा पैराग्राफ आपको एकदम क्लियरली बताता है कि जब भी कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है तो उसे जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं वो कंपनसेशन प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गुडविल. क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि अभी फर्म ने जितनी भी गुडविल अर्न की है वो सबके कारण अर्न की है, यानी उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन होता है. अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप फर्म ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी भी तो उसमें कहीं ना कहीं रिटायरिंग पार्टनर का भी कंट्रीब्यूशन होगा. सो उसके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन के फॉर्म में, क्योंकि उसके जाने से वो सब गेन करेंगे और इन फ्यूचर में बिजनेस ग्रो कर रहा है. भाई जाहिर सी बात है, गुडविल क्रिएट की गई है, तीनों ने मेहनत किया है, तो एक जा रहा है तो बाकी दो लोग अकेले तो उसका एंजॉय ना करें प्रॉफिट का. सो वो पहले ही जब वो जाता है, जो पार्टनर रिटायर करता है, उसे वो कंपनसेशन के रूप में गुडविल प्रोवाइड करते हैं. और ये गुडविल कैसे प्रोवाइड करते हैं? जैसे हम लोग क्वेश्चन में गिवन हो, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट से हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट से हो, या कैपिटलाइजेशन मेथड से हो, वो भी. एज ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस चैप्टर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 स्पेसिफाइड दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनी इज व्हाट हैज़ बीन पेड फॉर इट. यू नो AS 26 के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि चाहे वो PSR चेंज होने की कंडीशन में हो, चैप्टर नंबर 3 हो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर हो, चैप्टर नंबर 4 हो, उसमें हम गुडविल अकाउंट को कभी शो नहीं करते थे, बिकॉज जो गुडविल फर्म ने अर्न की है वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है. गुडविल को तभी रिकॉर्ड करते हैं जब हम उसको परचेस करते हैं किसी मनी के फॉर्म में. लेकिन जो गुडविल हम लोग अर्न करते हैं ड्यू टू आवर डेडिकेशन, ड्यू टू आवर ऑनेस्टी, सो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं. हेंस ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड. सो इस सिचुएशन में गुडविल अकाउंट ओपन नहीं होगी, जैसा हम लोग पहले करते थे. गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का एक एंट्री आपको याद रखना है. बट अंतर यहाँ पे कि सेक्रीफाइस कौन करेगा? कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर. अगर आप ऐसे समझिए, एडमिशन के केस में A और B रहते थे, C आता था, तो अब नए कितने लोग हो जाते? A B C. तो C जो भी गुडविल लाता था उसे एंजॉय कौन करता था? A और B, क्योंकि ओल्ड पार्टनर कौन है? A B. बट रिटायरमेंट के केस में देखिए थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर दिखेगा आपको. A B C है, C जा रहा है, अब नए पार्टनर कौन है? A और B. तो यहाँ C को गुडविल मिलेगा. एडमिशन के केस में C गुडविल ला रहा था और ओल्ड पार्टनर को दे रहा था, लेकिन रिटायरमेंट केस में वो जा रहा है, तो अब जो न्यू पार्टनर हैं जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर कहते हैं, वो C को गुडविल देंगे. यही उल्टा फंडा होता है. जो आता है वो गुडविल लेके जाता है, और जो आता है वो गुडविल लेकर आता है, और जो जाता है वो गुडविल लेके जाता है.
जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो बाहर से मिठाई लेकर आता है, और जब वो जाता है घर से तो उसे हम लोग विदाई में भी कुछ ना कुछ कंपनसेशन देते हैं। ऐसे ही आप फंडा याद कर लीजिएगा। As much in case of retirement or a death of a partner, the adjustment for goodwill will be made through partner's capital account. The retiring or deceased partner, retiring मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, डिसीज मतलब जो पार्टनर की डेथ हो रही है, will be credited with share of goodwill and continuing partner's capital account will be debited in their gaining ratio. The following entry will be recorded. So एंट्री क्या होगी, वही बेसिक वही एंट्री चली आएगी, बट पार्टनर्स का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। एंट्री विल बी continuing partners capital account debit to retiring or deceased partners capital। यानी सिंपल सा फंडा है, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है, डिसीज कर रहा है, वो तो सेक्रीफाइस कर रहा है, इससे सेक्रीफाइस को क्रेडिट करेंगे, और जो पार्टनर रह रहे हैं वो गेन कर रहे हैं, इसलिए उनको डेबिट करेंगे। तो सिंपल सा फंडा वही है। इस पूरे एडजस्टमेंट को और क्लियरली समझने के लिए वी विल टेक द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज P, Q and R are equal partner in a firm, are retired and the goodwill of the firm is valued 3,60,000. No goodwill account appear as in the books of the firm. P and Q agreed to share future profit in the ratio of 3:2. So पहले रेशियो क्या था? पहले रेशियो था PQR का 1:1:1, और जब R ने डिसाइड किया कि वो नहीं रहेगा तो अब कितने बचे? P और Q बचा, उनका रेशियो क्या है? 3:2। तो ओल्ड रेशियो ये है और न्यू रेशियो ये है, और ये कौन सा सिचुएशन है? रिटायरमेंट का। तो रिटायरमेंट केस में हम लोग क्या निकालते हैं सर? गेनिंग रेशियो निकालते हैं। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो? यू नो वेरी वेल। गेनिंग रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो P और Q का गेन निकाल लो। P का ओल्ड क्या है? 3/5, न्यू है 1/3। सॉरी, P का न्यू है 3/5 और ओल्ड है 1/3। वहीं Q का गेन है 2/5 और ओल्ड है 1/3। सो आफ्टर सॉल्यूशन द fraction we opt P gain by 450 and Q gain by 150. So the gaining ratio between A, P and Q that is 4:1. So सर जन एंट्री क्या होगी? तो जन एंट्री आपके सामने है, P और Q डेबिट होंगे क्योंकि ये दोनों ने गेन किया है, और R जा रहा है इसलिए उसको कैपिटल क्रिएट करेंगे। ओके, अब रही बात अमाउंट क्या होगी, तो यू नो वेरी वेल द टोटल अमाउंट ऑफ गुडविल इज 3,60,000 एंड यू नो वेरी वेल Q का शेयर क्या था? 1/3। PQR इक्वली कर रहे थे तो 1:1:1 था। सो उसका रेशियो क्या बनेगा? 1/3। सो R के लिए गुडविल का कंट्रीब्यूशन क्या है? 1/3। सो 1,20,000 ऑफ 1/3 ऑफ 3,60,000। सो R की कैपिटल कितने से क्रेडिट होगी? 1,20,000 से, और इस 1,20,000 को हम लोग P और Q में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर गेनिंग रेशियो दैट इज 4:1, 96,000 एंड 24,000। सो इट इज़ वेरी सिंपल। एंट्री का नेचर वही है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, और कह सकते हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ओके, नरेशन इज रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। नाउ वी विल मूव टू द अनदर प्रॉब्लम जो आपको और इजी क्लियर करेगा। भारती, कीर्ति एंड प्रीति आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। प्रीति रिटायर्स फॉर द पर्पस ऑफ इज वैल्यूड एज 1.5 परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होगा? 1.5। तो यू नो वेरी वेल सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलती है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज कितने साल का लेना है? 3 साल का। तो पहले हम लोग गुडविल निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो आपको गुडविल का फॉर्मेट भी यहाँ यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए वर्किंग नोट में क्लियर है। एवरेज प्रॉफिट हाउ वी विल कैलकुलेट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी एड द 3 प्रॉफिट, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाई 3 दैट इज 60,000। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। Thereafter we calculate the super profit, the average profit minus normal profit. Average profit is 60,000 and normal profit is given in this question that is 45,000. पहले हमने एवरेज निकाला और नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है 45,000, तो उसको डिडक्ट कर लिया तो हमारी सुपर प्रॉफिट आई 15,000। और आपको पता ही है
कि सुपर प्रॉफिट है 15,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज है 1.5, देन द गुडविल ऑफ द फर्म इज 22,500। जा कौन रहा है सर? जा रही है प्रीति। तो रेशियो क्या है प्रीति का? 4/9। तो पूरा गुडविल थोड़ी ना मिलेगा उसको, उसके शेयर का गुडविल मिलेगा, तो उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लेते हैं। प्रीति शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 22,500 इंटू 4/9 इक्वल्स टू 10,000। ओके, सो ये जो 10,000 है वो प्रीति को मिलेगा। देगा कौन? जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है यानी भारती, और दूसरे वाले का क्या नाम है? कीर्ति। भारती एंड कीर्ति अपने गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। अब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है वो इजी है। देखिए इसमें पहले तो देखिए भारती, कीर्ति एंड प्रीति का ओल्ड रेशियो है 2:3:4, और न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये सिचुएशन 1 है। द रेशियो एमंग भारती, कीर्ति एंड प्रीति इज 2:3:4। प्रीति रिटायर्स, सो प्रीति का रेशियो कट कर दीजिए, तो भारती और कीर्ति का न्यू रेशियो क्या है? 2:3। और आपको पता है सिचुएशन में जो न्यू रेशियो होता है वही क्या होता है? गेनिंग रेशियो होता है। सो गेनिंग रेशियो आएगा 2:3, और 10,000 को भारती और कीर्ति 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म, देयर आफ्टर वी कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, एंड देयर आफ्टर वी पास अ जर्नल एंट्री the gaining partner's capital account debit to sacrificing partner. Okay, now we will move to the next topic. ये टॉपिक इस समय ही बताना मुझे इसलिए लगा क्योंकि आपने प्रीवियस चैप्टर में ये टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा है। गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। वही रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, बस थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आपको क्रिएट करता है ये टॉपिक। वो ये क्या है? यू नो वेरी वेल, दो तरह का गुडविल होता है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, वैसे यहाँ पे भी दो तरह की गुडविल होगी। एक गुडविल वो होगी जिसे गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे, और एक गुडविल ऐसी होगी जो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी अपीयर्स होगी। यू नो वेरी वेल, जब भी कोई पार्टनर एडमिशन लेता है या PSR चेंज होता है या फिर कोई पार्टनर रिटायर या डेथ कर जाता है, तो इस सिचुएशन में इफ़ एनी गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में ऑलरेडी कोई गुडविल दिख रही है, आप बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो अगर गुडविल दिख रही है तो उस गुडविल का क्या करेंगे सर? वो गुडविल फर्म की गुडविल होती है और उस पर सबका हक होता है। अगर आप रिटायरमेंट के केस में देखिए तो A, B, C हैं और C जा रहा है, तो ओल्ड पार्टनर कितने हुए? A, B, C हुए ना, A, B थोड़ी ना हुए, A, B तो अब नए नए हैं, तो क्या उस गुडविल पे C का हक नहीं है? है सर, यानी वो गुडविल सबको मिलेगी, A को भी मिलेगी, B को भी मिलेगी, C को भी मिलेगी। सो ये फंडा आपको हर जगह एप्लीकेबल करना होगा, चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो। व्हेन एनी पार्टनर एडमिटेड, रिटायर्ड और डाइज, सो इन दिस सिचुएशन इफ goodwill account is already appears in the books, so it will be written off among all partner in their old ratio. चलिए थ्योरी क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं। Usually the goodwill is not shown in the books of firm. However, if at the time of retirement death of a partner it appears in the balance sheet of a firm, it will be written off by debiting all partners capital account in their old profit sharing ratio and crediting the goodwill account. In such case the following journal entry is passed. ये एंट्री आपने प्रीवियस चैप्टर में भी देखी होगी। All partners capital account to goodwill and in their old ratio. ओके, तो दो तरह की गुडविल हुई, एक जो रिटायरमेंट के केस में सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गेनिंग पार्टनर के द्वारा एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और एक गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर्स है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, नाउ वी विल मूव टू द अनदर क्वेश्चन जो आपको इस कॉन्सेप्ट को और इजी क्लियर करेगा। A, B, C are sharing profit in the ratio of 3:2:1. Goodwill is appearing in the books at a value of 24,000. Goodwill की वैल्यू कितनी है फर्म में? 20. ये गुडविल कौन सी है? जो बैलेंस शीट में अपीयर है। इसमें वर्ड देखिए अपीयरिंग,
बी रिटायर्स ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 60,000। दो तरह की गुडविल है, एक गुडविल जो बैलेंस शीट के एसेट्स में है और एक गुडविल जो है वो बी के रिटायरमेंट के समय डिक्लेयर की गई है ताकि गेनिंग पार्टनर उसे कंपनसेशन प्रोवाइड कर सके। और न्यू रेशियो क्या है 3:2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका केस क्या होगा सर, सबसे पहला काम होगा कि जो गुडविल अपीयर है उसे हम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दें। यू नो वेरी वेल, इफ at the time of retirement of a partner, if goodwill is already appeared in the books of account, so it will be distributed among old partner in their old ratio। तो पहले ये एंट्री पास करके आप सेफ हो जाइएगा। एंट्री विल बी A's capital debit, B's capital debit to C's capital to goodwill। टोटल गुडविल 24,000, इसे हमने ओल्ड रेशियो 12:8:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्योंकि रेशियो ओल्ड रेशियो क्या था 3:2:1 था। अब आपको पता है कि यहाँ बी जा रहा है, बी को पसंद नहीं आया फॉर्म, जा रहा है और उसको कंपनसेशन के लिए 60,000 की गुडविल कैलकुलेट की गई। तो उस केस में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, बी का शेयर क्या होगा, बी शेयर ऑफ गुडविल इज 60,000 इंटू 16 यानी 10,000। ओके, तो बी को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए 10,000 उसके शेयर के अकॉर्डिंग, सॉरी 2/6, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 20,000 क्योंकि बी का शेयर है 2/6। तो बी की गुडविल आई 20,000। अब हम लोग गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। यस सर, गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा देख लीजिए। यू नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए कितना गेन कर रहा है, न्यू है 3/5, ओल्ड है 3/6, सी का है ओल्ड 2/5 और न्यू है 1/6 क्योंकि आपको पता है कि ए बी सी का ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और बी के जाने के बाद ए और सी का न्यू रेशियो हो गया है 3:2। तो ए का न्यू जो है वो ए के उल्ट से माइनस होगा और सी का न्यू जो है ए सी के उल्ट से माइनस हुआ। तो हमने ये देखा कि ए गेन कर रहा है 330 से और सी गेन कर रहा है 730 से। So gaining ratio between A and C that is 3/7। So you know A और C दोनों गेन कर रहे हैं, तो जो गेन करता है उसको हम लोग क्या करते हैं डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है सर, सेक्रीफाइस कर रहा है B। So entry will be A's capital debit C's capital debit to B's capital। B को कितना गुडविल मिलना चाहिए था 20,000, 20,000 को हमने 3:7 में डिवाइड कर दिया। 3:7 क्या है आपका गेनिंग रेशियो है जिसे 6,000 एंड 14,000 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, उसे एज अ कंपनसेशन गुडविल प्रोवाइड करते हैं, अपने गेनिंग रेशियो में प्रोवाइड करते हैं। और रिटायरमेंट के केस में अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर है बुक में यानी बैलेंस शीट के एसेट्स में ऑलरेडी अपीयर्ड हो रही है, ये लैंग्वेज यूज़ हो रही है, सो उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते हैं, यानी सारे पार्टनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। डिफरेंस यही है, इस गुडविल को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं और इस गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके लिए, आज का आखिरी क्वेश्चन। XYZ are partners sharing profit in the ratio of 2:3:5. Goodwill is appearing in the books at the book value of 60,000. X retires and on the day of X retirement the goodwill is valued at 45,000. Y and Z decide to share future profit equally. So देखिए XYZ का ओल्ड रेशियो दिया है 2:3:5। पहले क्वेश्चन को समझ लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ओल्ड हो गया 2:3:5 X का, Y का, Z का। ओके सर, फिर गुडविल अपीयर है तो इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एक्स रिटायर कर दिया तो बच्चे कितने, वाई और जेड, उनका न्यू रेशियो क्या हो गया, इक्वली है 1:1। और गुडविल कितनी वैल्यूड हुई है 45,000। ओके सर, अब चलते हैं पर देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो गुडविल अपीयर्ड है कितनी अपीयर्ड है 60,000। थोड़ा इसको हम और क्लियर करते हैं। 60,000 की गुडविल है, उसे एक्स वाई जेड में बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू गुडविल, गुडविल इज 60,000 टोटल।
12,000, 18,000, 30,000 तीनों में बांट दिया. सो गुडविल अपीयर इन द बुक्स रिटन ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो एमंग ओल्ड पार्टनर. दूसरी बात, जब x जा रहा है तो x को गुडविल मिलनी चाहिए. कौन देगा? कॉन्टिनिंग पार्टनर देंगे. कौन कौन कॉन्टिनिंग पार्टनर है? y और z. किस रेशियो में देंगे? अपने गेनिंग रेशियो में. तो हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. चलिए निकालते हैं गेनिंग रेशियो. यू नो ओल्ड रेशियो पता ही था. हाँ सर. ओके, तो गेनिंग रेशियो क्या ओल्ड रेशियो था? 235. एक्स वाई जेड का ओल्ड रेशियो था 235. एक्स के जाने के बाद बचा वाई और जेड बचे 1:1. तो न्यू रेशियो है वाई का 1/2, जेड का है 1/2, ओल्ड है 310 एंड 510 वाई और जेड का. सॉल्व किया तो 210 आया. गेन किया और जेड ने तो गेन ही नहीं किया. अब बताओ, जेड को कुछ मिला नहीं तो क्या गुडविल देगा? नहीं सर. तो जेड को गुडविल देने की ज़रूरत नहीं है. गुडविल खाली कौन देगा? वाई. क्यों? क्योंकि सिर्फ वही गेन किया है एक्स के रिटायर होने से. सिर्फ फ़ायदा किसको हुआ है? एक्स को, वाई को. सो एंट्री विल बी वाइज कैपिटल टू एक्स कैपिटल. जो गेन किया उसको डेबिट किया और जो सेक्रीफाइस जो जा रहा है बेचारा उसको क्रेडिट किया. अब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी थी सर? 45,000. ये लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि टोटल गुडविल दी है तो उसके शेयर पे निकालेंगे. एक्स का शेयर क्या था? 2/10. तो उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9,000. सो एक्स को गुडविल कितनी मिलनी चाहिए थी? 9,000. और पूरा का पूरा कौन देगा? वाई देगा, क्योंकि ही एलोन हैज़ गेन ऑन एक्स रिटायरमेंट. सिर्फ उसने ही गेन किया है एक्स के रिटायरमेंट होने से. जेड ने कोई गेन नहीं किया, इसलिए जेड को कोई गुडविल देने की ज़रूरत नहीं. तो बेसिकली आज हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए इस टॉपिक नंबर 2 से. इसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किया. पहला तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल और दूसरा हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स. सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप लोग अपने एंड पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और उसमें कुछ स्टेप्स अपने पास पहले क्लियर कर लीजिए. पहला स्टेप्स एकदम क्लियर ये है होना चाहिए आपके सामने कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो पहली बात ये है कि जो रिटायर करेगा उसे कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर की तरफ से एज अ कंपनसेशन गुडविल प्रोवाइड होगा. सो उसकी एंट्री एकदम क्लियर होगी. उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल. ओके. दूसरी बात यह है कि अगर ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर अगर कोई गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, सो उस पर सबका हक होगा. जितने पुराने पार्टनर सबको वो गुडविल मिलेगी इन देयर ओल्ड रेशियो. सो इन दिस सिचुएशन अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. और गुडविल क्या होती है? एसेट्स होती है. तो गुडविल जब जाती है तो क्रेडिट करते हैं और किसको मिलेगी? ए को, बी को, जितने पार्टनर हैं. ए बी क्या, हम इसकी जगह ओल्ड पार्टनर टर्म यूज़ करते हैं. ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में? ये होगी ओल्ड रेशियो में. और ये जो रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा वो किस रेशियो में दिया जाएगा? गेनिंग रेशियो में. कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिकली 2 तरह की गुडविल है. मैं बार बार इसी चीज़ को समझा रहा हूँ और मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज इन दिस टॉपिक कि एक गुडविल सर ये दूसरी गुडविल कौन सी है? तो एक गुडविल वो होगी जो कि ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रोवाइडेड बाई गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर as a compensation. And second type of goodwill which are the assets of the business, such kind of plant and machinery की तरह assets होती है. लेकिन goodwill क्या है? एक तरह की ऐसी assets है जिससे हम रिटर्न ऑफ करते हैं. ओके, उस पर सबका हक होता है. सो गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, चाहे रिटायरमेंट का केस हो, चाहे एडमिशन का केस हो, चाहे वो डेथ का केस हो. इट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो. सो आई होप कि आज का जो टॉपिक है वो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस अगर इस टॉपिक में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, सो प्लीज़ आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल एज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उसमें भी डिस्कस करिए. एंड प्लीज़ कैप्चर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ द ऑफ योर डाउट्स. जो भी आपके डाउट्स हैं उसका कैप्चर ले लीजिए. उसके बाद जब हम लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसको शेयर करिए ताकि हम लोग और ईजिली उस पर डिस्कस कर सकें.
तो वी हैव अ 2 ऑप्शन फॉर डाउट क्लियरिंग, फर्स्ट ऑनलाइन क्लास एंड सेकंड वन इज़ अ व्हाट्सअप ग्रुप। ओके, सो आई होप कि आज हम लोगों ने जो भी कन्वे करने की कोशिश की वो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।